So, guys, this is the last part of the Rhyme of Ancient Mariner, the part 7, and with this, the Rhyme of Ancient Mariner, the whole poem comes to an end. So, it has more than 100 stanzas, and I have uploaded all the parts on my YouTube channel. तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूँगी. So, this is the text of this poem of this 7th part, and I have divided it into 5 parts. So, starting with the stanza 119 to 123, Hermit good lives in that wood which slopes down to the sea. How loudly his sweet voice he hears. He loves to talk with mariners that comes from a far country. He kneels at morn, at noon, and eve. He hath a costume plump. In it is the moss that wholly hides the rotted old oak stump. The skiff boat neared, I heard them talk. Why, this is strange, I trow. Where are those lights, so many and fair? That signal made but now, strange by my fate, the hermit said, and they answered not our cheer. The planks looked wrapped, and see those sails, how thin they are and sere. I never saw aught like to them, unless perchance it were brown skeleton of leaves that lag. How forests brook along when the ivy tod is heavy and snow, and the owlet whoops to the wolf below, and the wheat and that eats she wolves young. So explanation goes as, so the hermit जो आता है हमारे पास पार्ट 6 के अंदर, तो पार्ट 7 में वो hermit जो है वो hermit भी आता है उसको. तो 6 पार्ट के अंदर वो जो एंशंट मैरिनर है, तो वो आखिर एट लास्ट वो अपने कंट्री वापस आ जाता है, वो हार्बर पे वापस आ जाता है. उसने फिज़िकली सारा कुछ उसने सफ़र कर लिया, ठीक है. उसको डेथ भी मिली, उसको सी स्ट्रॉम का भी उसने फेस किया, सी स्ट्रॉम को भी, समुद्री तूफान को भी, हर तरह की मतलब नेगेटिविटीज़ एंड हर तरह के उसने मिसफॉर्च्यून मिजरीज उसने सफ़र की. आफ्टर किलिंग दैट albatross, who is the symbol of nature, right? तो अब इसको 6 पार्ट के एंड में उसको एक हर्मिट, एक शिप दिखाई देती है और उसमें इंसान होते हैं 2 और एक हर्मिट होता है. हर्मिट एक स्पिरिचुअल प्रीस्ट टाइप का होता है, वो जो कि फॉरेस्ट में रहता है. तो अब जो है उसने फिज़िकली सारा कुछ उसने फेस किया समंदर में. अब वो जब शोर पे आया तब उसको हर्मिट जो कि स्पिरिचुअल लीडर है, स्पिरिचुअल फिगर है, अब उसको स्पिरिचुअली क्लेंस्ड करेगा वो, ठीक है. तो हर्मिट, तो द हर्मिट लिव्स अ गुड लाइफ इन अ फॉरेस्ट डाउन द सी. वो हर्मिट जो है अच्छी लाइफ जीता है फॉरेस्ट में, नीचे समंदर के जो है. हाउ लाउड his sweet voice is. He loves to talk with sailors that comes from far off lands. तो वो जो है वो सेलर्स के साथ बातें करता है जो कि दूर दराज के इलाकों से आते हैं, दूर दराज के लैंड से आते हैं. तो हर्मिट उनसे बातें करता है. He loves to talk like that. So every day in the morning, noon and evening he prays on a soft cushion made of moss that covers an old rotting oak stump. So as a little boat approached, I heard them talking. This is so strange that there were too many bright lights that used to signal them and are gone now. So the hermit says, how strange is it? They did not respond to our greeting. वो जो hermit जो है, वो पायलट जो है, वो शिप में जो बैठे हुए हैं, वो लाइट्स की बात कर रहे हैं कि कितनी स्ट्रेंज बात है कि ये लाइट्स वगैरह हमें वेलकम नहीं कर रही, ये ज़्यादा शाइन नहीं कर रही लाइट्स. लुक एट द शिप. अब वो शिप की बात करते हैं जिसके ऊपर वो एंशियंट मैरिनर और डेड बॉडीज़ ले कर रही हैं.
So look at the ship. The wooden planks are bent and the sails are so thin and dry. I have never seen a thing like that before, except maybe the dried leaves that drift slowly in my forest stream. It reminds me of winter when snow weighs down the ivy and owl hoots. Hoots का मतलब एक owl चिल्लाता है. लाइक मतलब शिप की बात कर रहा है कि वो कितना पुराना हो गया. मुझे तो अपने फॉरेस्ट में जब विंटर होती है तो बहुत खुश्की सी होती है और बहुत जाड़े का मौसम होता है, तो वो आउल भी चीखते हैं. एंड द वुल्फ हंट्स द यंग ऑफ अनदर वुल्फ. और मतलब वो जो है ना बहुत ज़्यादा जो बुरी सिचुएशन होती है तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं. सो मेरे कहने का मतलब था कि अब जो है एंशियंट मैरिनर का जो है स्पिरिचुअल जर्नी उसकी स्टार्ट हो गई है 7th स्टेंजा पार्ट में. ठीक है. So, moving towards stanzas 124 to 128. Dear Lord, it had the fiendish look. The pilot made reply, I'm afeard. Push on, said the hermit cheerily. The boat came closer to the ship, but I nor spake nor stirred. The boat came close beneath the ship, and straight a sound was heard. Under the water it rumbled on, still louder and more dread. I reached the ship, it split the bay. The ship went down like lead, stunned by that loud and dreadful sound, with sky and ocean smooth, like one that had been 7 days drowned. My body lay afloat, with swift as dream. Myself I found within the pilot's boat, upon the whirl where sank the ship. The boat spun round and round, and all was still save that the hill was telling of the sound. So explanation. So the pilot made a reply. So pilot ने वो hermit की बात का reply किया, और by looking at this mariner ship, क्यों mariner ship की बात कर रहे हैं कि वो देखो कितना टूटा हुआ, कितना fragile ship है इसका. आखिर उसने मतलब समंदर में इतने सारी मिजरीज देखी हैं उस शिप ने भी, तो वो उसकी वेयर एंड टेयर हो जाती है. तो डियर लॉर्ड दैट शिप्स लुक ईवल. वो डियर लॉर्ड उसको वो हर्मिट को बोल रहा है, डियर लॉर्ड दिस शिप्स लुक ईवल, आई एम अफ्रेड. कि ये शिप तो मुझे ईवल लग रहा है, कोई शैतानी चीज़ लग रही है. मुझे तो उसको देख के खौफ आ रहा है भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है शिप से. सो हर्मिट से चीयरली कीप गोइंग ऑन, जाते रहो आगे, कुछ नहीं होता. तो हर्मिट जो है उसके पास स्पिरिचुअल पावर है, और वो जो पायलट है तो उसको डर लग रहा है कि मतलब ये जो है ना कोई मतलब उस शिप को देख के पता लग रहा है कि वो जो शिप जो है ना अच्छी कंडीशन से होके नहीं आई, बहुत सफ़र किया है उसने. तो पायलट को इस चीज़ से डर लग रहा है. और हर्मिट जो है ही इज़ काम, ही स्पिरिचुअल, उसको यकीन है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी से हर चीज़ को ठीक कर देगा. द बोट केम क्लोजर टू माई शिप. तो एंशिएंट मैरिनर बात करें कि वो बोट जो है मेरी शिप के क्लोज आई, बट आई वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड साइलेंट. द बोट केम close beneath the ship, and a sound was heard. When we got close, a deep rumbling sound began beneath the ship. It grew louder and louder and more terrifying until it reached the ship. It split the bay open and dragged the ship down as if it were made of lead. So the noise was so dreadful that it left me in a daze, as though I had been drowning for days. My body floated lifelessly on the water, but suddenly, as in a dream, I found myself in a pilot's boat. The spot where the ship sank turned into a whirlpool where the boat was spinning round and round. After that, everything was still and silent except the echoing hill that seemed to carry the story of a dreadful साउंड. ठीक है. तो अब क्या हुआ जी, वो शिप करीब आ गई उसके, और मतलब वो मतलब पानी में गिर गई. और फिर जो है वो जो है एंशिएंट मैरिनर जो है वो पायलट और वो हर्मिट लोगों के साथ आ जाता है. ठीक है. और वो बहुत सारी साउंड्स वगैरह होती हैं, तो वो हिल्स जो है वो अभी तक इकोइंग कर रही होती है एज इफ मतलब जो अभी हुआ है, तो वो जो हिल जो है ना उनको अभी मेमोराइज कर रही हैं, उनकी मेमोरी में अभी तक वो सब कुछ है. तो मूविंग टुवर्ड्स स्टैंजास 129 to 133, I moved my lips
The pilot shrieked and fell down in a fit. The holy hermit raised his eyes and prayed where he did sit. I took the oars. The pilot's boy, who now doth crazy go, laughed loud and long, and all the while his eyes went to and fro. Ha ha, quoth he, full pains I see that the devil knows how to row. वो मतलब उसकी तरफ इशारा करके कह रहा. And now all in my own country I stood on the firm land. The hermit stepped forth from the boat, and scarcely he could stand. Oh shriek me, oh shrieve me, oh shrieve me, holy man. The hermit crossed his bow. Say quickly, quoth he, I bid thee say, what manner of man thou art thou? Forthwith his fame of mine was drenched with awful agony, which forced me to begin my tale, and then it left me free. So explanation goes as, तो आप जो है उसके करीब के पास आ गए. When I moved my lips, जब मैंने अपने lips move किए, the pilot shouted. वो पायलट मतलब मैं कुछ बोला तो पायलट मुझे देख के ही वो हो गया, शॉक्ड हो गया, और वो गिर गया, फेंट हो गया, वो कोलैप्स्ड हो गया. The holy hermit raised his eyes and prayed where he was sitting. मेरे बोलने पे जो है वो हर्मिट कुछ बोलने लग गया, मरमर करने लग गया, प्रे करने लग गया, और वो जो पायलट जो था, वो जो इंसान था, वो गिर गया. एंड आई टुक द ओर्स. मैंने वो चप्पू जो होता है ना, किश्ती में आप बैठते हैं, आप चप्पू चलाते हैं, जैसे पानी जो है पीछे चलता है और शिप आपकी आगे आती है. आई टुक द ओर्स while the pilot's boy, who now went crazy, laughed and laughed loud and long at the same time. His eyes went backwards and forward. He said, ha ha, the devil himself knows how to swim. एंड तो रोइंग मतलब रो का मतलब है हाउ टू रो, मतलब किस तरह से स्विम करना है, किस तरह से किश्ती को चलाना है. तो अब वो जो पायलट बॉय जो था मुझे देख के, मतलब मैं चप्पू चला रहा था पानी में, शिप को मैं आगे बढ़ा था, तो वो जो पायलट का जो असिस्टेंट था, पायलट्स बॉय था, वो मुझे देख के कहने लगा कि डेविल को तो किश्ती भी चलाने आती है भाई. And now finally we reached my homeland. I stopped onto solid ground, but the hermit could barely walk as he left the shore, as he left the ship. तो वो अब ज़मीन पे आ गया, शोर पे आ गया, मिट्टी पे आ गया अपनी कंट्री के. I begged the hermit to forgive me. I was crying, please forgive me. The hermit made the sign of cross and demanded to know. Say quickly. I want you to say that. What kind of man you are? तो मतलब वो हर्मिट ने उसको मतलब दिलासा दिया कि उसको थोड़ा सा कहा कि तुम मतलब शांत हो जाओ, अपने तुम थोड़ा सा जो है सेटल डाउन, गेट सेटल डाउन, डोंट वरी अबाउट दैट. तो उसको क्रॉस का निशान बनाया उसको और कहा कि मुझे बताओ जल्दी से कि तुम किस तरह के आदमी हो, तुम इंसान हो, डेविल हो, क्या हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Suddenly, I was gripped by intense pain that compelled me to begin telling my story. Once I started, the pain left me free and allowed me to continue my story. So जैसे ही जिस तरह से उसने मुझसे हर्मिट ने पूछा, अचानक से आई वॉज ब्रस्ट इन पेन. मैंने पेन में अपनी कहानी स्टार्ट कर दिया. ऐसे लगा कि मेरा पेन मुझे पुश कर रहा है कि मैं अपनी कहानी बताऊं, और मुझे जब पेन ने मुझे पुश किया उसके बाद मुझे फ्री कर दिया कि मैं अपनी कहानी सबको सुनाऊं, ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. सो मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टू पार्ट्स इन विच आई हैव डिवाइडेड द स्टेंजास. सो वन स्टेंजा 134 to stanza 138. Still then, since then, at an uncertain hour, that agony returns until my ghastly tale is told. This heart within me burns. I pass like night from land to land. I have strange power of speech. That moment, that his face I see. I know the man that must hear me. To him my tale I teach. That what Lord uproar burst from that door. The wedding guests are there, but in the garden bore, that the bride and the bridesmaid come singing are, and harks a little whisper bell, which bideth me to prayer. O wedding guest,
that soul had been alone in a wide, wide sea. So lonely that God himself scarce seemed there to be. Oh, sweeter than the marriage feast, this sweeter, sweeter far to me to walk together to the kirk with a goodly company. So explanation goes as explanation है इसकी. Since that time it was at an unpredictable moment that agony and pain returns, and it does not leave me until my grim story is told, a story which burns my heart. I passed like it passed like night. ठीक है, इसके स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए. It passed. I passed from like night from place to place with a strange power of speech. ठीक है, that moment I see a person's face. I know the man must hear my story, and to them I tell my story. Listen, a loud, excited movement can be heard from that door, and the wedding guests are celebrating. Meanwhile, in the garden, the bride and bridesmaids sing, and the evening prayer bell rings, calling me to prayer. So, O wedding guest, my alone soul has been utterly lost in that wide, wide sea, so lonely that even God seemed silent and God was afraid of it. मैं इतना मतलब अलोन था समंदर में, इतना अलोन था उतने बड़े समंदर में, इतने बड़े बड़े समंदर में इतना अलोन था कि इवन गॉड भी मेरे पास आने से घबरा रहा था. It's like such a skeptical view of God, right? So, but for me, sweeter than any wedding guest is the joy of walking to church with good and faithful people. So, but मेरे लिए जो है चर्च जाना जो है वो एक वेडिंग फेस्टिवल को अटेंड करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने अपने आप को क्लेंस करना है, मैंने अपने आप को एल्बस्ट्रॉस के ब्लड से, और जो सिन मुझसे हुआ है एल्बस्ट्रॉस को, जो कि एक इनोसेंट क्रिएचर को मार के मैंने जो किया है, तो मैं उसको साफ करना चाहता हूँ, जो कि चर्च में होगा. ठीक है, so moving towards the last part, which is stanza 139 to 143. To walk together to the kirk and all together pray, while each to the great Father bends, old men and babies and loving friends, and youth and maiden gay. Farewell, farewell, but this I tell to thee, the wedding guest, he prayeth well, who loveth well, both man and bird and beast. He prayeth best, who loves best. Amazing lines, बहुत मजे की lines है. All things, both great and small, for the dear God who loveth us. He made and loveth all. The mariner whose eyes is bright, whose beard that ages hoar is gone, and now the wedding guest turned from the bridegroom door. He went like one that had been stunned, and is of sense forlorn. A sadder and a wiser man, he rose the morrow morn. So explanation. तो आप यहाँ पे कहानी ख़त्म हो रही है, वो जो पोएम ख़त्म हो रही है, कहानी भी सारी की सारी सिमट रही है. ठीक है, तो द स्टोरी इज कमिंग टू एन एंड. So explanation. To walk together to church and pray together, all together, while everyone, including all men, babies, friends, young men and women, bending before the great Father, like Christ and all. ठीक है, तो farewell, but listen to the wedding guests. This I want to tell you that those creatures, including humans, birds and beasts, who love well pray well. ठीक है, जो भी मतलब वो सबको बात बताना चाहते हैं, वो मैरिनर, एंशिएंट मैरिनर, कि जो प्यार अच्छे से कर सकता है ना, जो प्यार अच्छे से कर सकता है वो प्रे भी अच्छे से कर सकता है. क्योंकि एंड दोज हु प्रे द बेस्ट आर दोज हु लव द बेस्ट. और जो प्रे अच्छे से कर सकता है ना, इसका मतलब है कि वो प्यार बहुत अच्छे से कर सकता है. क्योंकि because it includes all big to small, सारे human से
एनिमल्स, सारे ह्यूमन से स्मॉल की बात करें, सारे ह्यूमन बीस्ट और एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, कि जो भी क्रिएचर है लिविंग थिंग, जो अच्छे से प्यार कर सकता है वो अच्छे से दुआ कर सकता है, जो अच्छे से दुआ कर सकता है वो अच्छे से प्यार कर सकता है, ठीक है। बिकॉज द गॉड लव्स those who because the God who loves us also made and love all creation, क्योंकि बिग का मतलब गॉड ही इज़ बिग, राइट। तो और स्मॉल हम क्रिएचर्स जो हैं, गॉड ने हमें पैदा किया है और वो हमसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमें कभी भी मिजरी में नहीं देखेगा। द मैरिनर्स हु आइज आर, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आपकी दुआएं, आप जो प्यार बेहतर तरीके से कर सकते हो, प्रे अच्छे तरीके से कर सकते हो, जो प्रे अच्छे तरीके से कर सकते हो, प्यार अच्छे तरीके से, इसका ये मतलब है कि आपकी जो भी प्रे आती है ना वो दिल से आती हैं, और वो दिल से तब भी आपकी आएंगी जब आप प्यार करेंगे अच्छे से, प्यार दिल से होता है, ठीक है। लव इज़ ऑल थ्रू हार्ट, राइट, लव हैपन्स ऑल थ्रू हार्ट्स एंड तो ये इस पोएम का मैसेज है एट द एंड, ठीक है। लास्ट पॉइंट, द मैरिनर whose eyes is bright and is of old age is gone and now the wedding guest turned away from the bridegroom door। अब वो जो मैरिनर जो है, जो कि उसकी आंखें ब्राइट थी और वो उसकी बियर्ड जो थी, उसकी दाढ़ी जो थी वो ग्रे कलर की थी, और जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत ही फ्रेजाइल था, बहुत ही फ्रेल था, वीक था, अब वो जा चुका है। और वो जो वेडिंग गेस्ट को जिन्होंने रोका, जिन्हों को उसने रोका था कहानी सुनाने के लिए, वो भी अब वो जो वेडिंग अटेंड करने से वापस ही चले गए। He went away like the one who has been stunned and is lost of thoughts, and स्पेलिंग ठीक करने पड़ेगा, AND है। And the next morning he woke up as a sadder and a wiser man and तो वो ओल्ड मैन ऐसे लग रहा था, वो जो मैरिनर था ऐसे लग रहा था कि उसकी सारी थॉट्स उसकी जा चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं, और वो अगले दिन जब वो उठा है तो वो एक वाइज़र और एक जो है सैडर और एक वाइज़र मैन है, क्योंकि उसको उस जर्नी ने इतना कुछ सिखा दिया, उस जर्नी ने उसको इतना कुछ सिखा दिया कि ही इज़ लाइक अ कंप्लीट मैन। वो एक डिफरेंट बंदा बन चुका है, डिफरेंट लाइक कंप्लीटली डिफरेंट मैन बन चुका है वो, ठीक है। तो उसको उस जर्नी ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। I hope that you understand the rhyme of Ancient Mariner, the philosophy behind it, कि एक जर्नी जो है, आप एक सिन करते हैं, कोई भी, इसका थीम भी है ये, आप एक सिन करते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद आपको सफरिंग करना पड़ती है और वो सफरिंग आपको कुछ सिखा देती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। इसका थीम मेजर थीम है और लव वाला थीम भी है, ठीक है, कि गॉड्स मर्सी and God's love for his creation, and that was all his love for creation। वो उसका प्यार था उस क्रिएशन के लिए, उस एल्बास्ट्रॉस के लिए, कि जिसको लेके गॉड इतना सीरियस था, इतना लव करता था एल्बास्ट्रॉस से, कि उसने जो है मैरिनर को इतना सफ़र करवाया। लेकिन मैरिनर को सफ़र कराने के बाद उसने मैरिनर को भी बचा लिया, क्योंकि वो मैरिनर से भी इक्वली प्यार करता था, उसे लव करता था। सो दैट वॉज अ वेरी हार्ट टचिंग पोइट्री टू मी। इट्स अ रोमांटिक पोइट्री, it's about the love of nature। Albatross was a child of nature। तो उसको किल करने के बाद, नेचर को किल करने के बाद ह्यूमन की क्या कंडीशन होगी, तो वो भी आप देख सकते हैं एज अ थीम इसमें। तो एक पूरी वीडियो आएगी थीम और सबकी, तो आप उसको एनालिसिस और थीम की सो आप उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो एक कवर वीडियो होगी, तो उससे आपको बहुत कुछ आप सीखेंगे उस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं बहुत हार्ड वर्किंग से वीडियोज़ पुट टुगेदर करती हूँ, बहुत हार्डली वीडियोस बनती हैं। सो आपके अप्रिसिएशन इन अ फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन और लाइक विल बी हाईली कमेंडेबल। सो थैंक यू क्लास।